हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स माइटो एंड कॉन्ड्रिया। माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन्स grains. It means it is thread or grains like structures present inside the cell or in cytoplasm. Okay. First of all, mitochondria was first observed by Kolliker and isolated from insect muscles cells. सबसे पहले कोलिकर ने इसे देखा और इंसेक्ट के मसल्स सेल से आइसोलेट किए और कोलिकर ने उस स्ट्रक्चर का नाम दिए सार्कोसोम्स। नाम क्या दिए? सार्कोसोम। सोम मीन्स बॉडी, सार्को मीन्स मसल्स, इट मीन्स बॉडी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मसल्स और नाम दे दिया सार्कोसोम्स। आफ्टर दैट टर्म माइटोकॉन्ड्रिया was given by Altman and बेंडा। मेनली बेंडा का ही नाम आता है ऐसे। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय बेंडा। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया इज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर scattered in cytoplasm, but the shape and number of mitochondria is variable in different cells. Okay, number is variable. It is scattered in cytoplasm in different forms such as round, oval, thread like, granular means grains like, etc. Okay, it is present in different forms and number of mitochondria is also variable in different cells. अलग अलग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी अलग अलग होता है। Number of mitochondria is variable in different cells such as only one mitochondria, single mitochondria present in some algae and protozoa. Single in protozoa and algae. Algae such as chlorella algae. Chlorella is a type of algae in which only one mitochondria is present. Okay, in some other cells such as in human sperm, in human sperm 20 to 25 mitochondria are present. 20 to 25 mitochondria are present. Okay, in kidney cell number of mitochondria is 300 to 400 in kidney cell. Okay, in other cells such as in liver cell 500 to 1000, in liver cell, and 3 lakhs in oocytes of some amphibians. 3 lakhs in oocyte of some amphibians.
ठीक है। इससे भी ज्यादा नंबर की अगर हम बात करें तो 5 लाख इन मसल सेल्स, 5 लाख इन फ्लाइट मसल्स सेल्स ऑफ बर्ड। ओके, सो इट्स नंबर, okay, it means the number of mitochondria in cell depends upon activity of the cell। जिस सेल का एक्टिविटी जितना ज्यादा होगा उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा होगा, और उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है ना। एक सेल्स में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, एक सेल्स के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है सभी को कॉमनली कॉन्ड्रीडोम कहा जाता है। इट मीन्स ऑल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ए सेल, all mitochondria present in a cell is called chondridome। all mitochondria present in a cell, एक सेल के सही माइटोकॉन्ड्रिया को कॉमनली कलेक्टिवली नाम देते हैं कॉन्ड्रीडोम। ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज covered by double membrane। one outer membrane, other inner membrane। outer membrane is continuous while inner membrane fold inwards, अंदर की तरफ मुड़ जाता है, एंड फॉर्म्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टी। इट मीन्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी इज फॉर्म्ड बाई इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन्स। इनर मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ फोल्ड कर जाता है तो बनाता है क्रिस्टी। ओके, जनरली इन आउटर मेम्ब्रेन मोर फास्फोलिपिड इन प्रेजेंट, एंड इन इनर मेम्ब्रेन मोर प्रोटीन इज प्रेजेंट। कंटेन्स मोर फास्फोलिपिड, इट कंटेन्स मोर प्रोटीन। Generally, you know, plasma membrane consists of lipid and protein, and the membrane of mitochondria is as like plasma membrane, but there are some differences। inner वाले में फास्फोलिपिड ज्यादा है, प्रोटीन कम है। आउटर वाले में, बाहर वाला में प्रोटीन ज्यादा है, फास्फोलिपिड कम है। ठीक है, आगे देखिए। जनरली अगर हम स्ट्रक्चर देखें, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन present in continuous forms, inner membrane fold inwards this like, and forms finger like structures called cristae। Okay, inner membranes divides the cavity of mitochondria into two parts। one is called outer chamber, other is called inner chamber। inner chamber also called matrix। ठीक है, and the space between outer and inner membrane is called perimitochondrial space। perimitochondrial space, this is matrix। in matrix DNA, ribosomes, RNA present। RNA, DNA, ribosome, it is DNA deoxyribonucleic acid, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब जरा ध्यान दीजिए, इन ऑन द इनर मेम्ब्रेन न्यूमरस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, दिस लाइक, पूरे सरफेस पर, इनर सरफेस पर यह स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड F1 पार्टिकल, और कहीं कहीं नाम मिलेगा F0 F1 पार्टिकल, बिकॉज these granular structures are discovered by फर्नांडिज मोरन। फर्नांडिज मोरन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम दे दिया जाता है F1 और F0 पार्टिकल। ओके, outer and inner membrane of mitochondria contains numerous enzymes. Generally, inner membrane contains different enzymes that is responsible for oxidative phosphorylation, electron transport system, etc. Now see, inner membrane contains enzyme responsible for ETS, electron transport system, and oxidative phosphorylation, ETS, electron transport system. Generally, these are the parts or stage of cellular respiration. Cellular respiration completes in mainly 4 stages. First is glycolysis, second Krebs cycle, third electron transport system, and fourth oxidative phosphorylation. Phosphorylation means formation of ATP. ADP से ATP का फॉर्मेशन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. So formation of adenosine triphosphate from adenosine diphosphate is called phosphorylation. Simply addition of phosphate. यहाँ 2 phosphate है, यहाँ 3 phosphate है, मतलब एक phosphate का addition हो रहा है. This is called phosphorylation and it occurs in presence of oxygen. So it is called oxidative phosphorylation. And electron transport system, transfer of electron from one molecules to another molecules. ठीक है, रिस्पायरेशन में जब फूड का ब्रेकिंग होता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है और वह हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक मोलेक्यूल से दूसरे मोलेक्यूल से, और उसी का नाम हम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसके लिए बिल्कुल याद रखिएगा कंपटीशन व्यू से कि इसका एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है. एंड एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन. अभी बताया मैं कि रिस्पायरेशन का 4 पार्ट, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. सो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन matrix of mitochondria. Okay, oxidative phosphorylation means formation of ATP from ADP, adenosine triphosphate from adenosine diphosphate in presence of oxygen. ठीक है, अगर हम सीधे कहते हैं formation of ATP from ADP, that is called phosphorylation. Phosphorylation is of 2 types, oxidative phosphorylation and photophosphorylation. Oxidative phosphorylation occurs in presence of oxygen. Photophosphorylation occurs in presence of light. So during photosynthesis, photophosphorylation takes place.
फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, और उसका नाम देंगे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एटीपी इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ओके, एंड द एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम होता है। अब देखिए हम बात करते हैं F1 F0 पार्टिकल। F0 और F1 पार्टिकल ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजोम, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजोम, ठीक है। और यह कहां मिलेगा तो मैं बताया ऑन द सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन और ऑन द इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। और भी नाम इसका दे सकते हैं आप एलिमेंट्री पार्टिकल, डिस्कवर्ड बाई फर्नांडिस मोरन। फर्नांडिस मोरन साइंटिस्ट ने खोज किया, नाम पड़ गया F1 F0 पार्टिकल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिए। This is outer membrane of mitochondria, outer membrane, inner membrane, और इनर मेम्ब्रेन से अटैच है ये, दिस इज कॉल्ड हेड एंड दिस इज अ स्टॉक, हेड एंड अ स्टॉक। इन हेड ऑफ ऑक्सीजोम, in head of F1 particle or oxyzome, ATPase enzyme present. ATPase responsible for formation of ATP. ATPase responsible for फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्मेशन के लिए एटीपेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और, इन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, राइबोसोम एंड आरएनए प्रेजेंट। ऐसे तो डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ द सेल, but in mitochondria their own DNA, RNA and ribosomes are present. It means it is also able to form its own protein with the help of DNA, RNA and ribosome. इसका अपना DNA है, RNA है, प्रोटीन है, तो यह अपना DNA, RNA और राइबोसोम है, तो यह अपना प्रोटीन का फॉर्मेशन खुद करता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। In matrix of mitochondria, DNA, RNA, protein is present. DNA, RNA, and ribosome. Ribosome is of two types, 70S and 80S. Ribosome is of two types, 70S, 80S. एस का मतलब आगे बताऊंगा। ऐसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेद वर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 70S राइबोसोम मेनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, 80S राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें मिलेगा 80S, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S। बट इन सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इन सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल 70S ribosome is present. Okay, cell organelles of eukaryotic cell 70S ribosome. It means in mitochondria 70S ribosome present. And with the help of this structure, mitochondria forms their
own protein and called semi-autonomous organelle. ओके, चलिए अब जरा देखते हैं हम फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली वन फंक्शन. कौन सा फंक्शन है? सेलुलर रिस्पायरेशन. Mitochondria is the site of cellular respiration and it produce energy by cellular respiration and called powerhouse of the cell. Mitochondria is called powerhouse of the cell because it produce energy by cellular respiration. सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है, सेल को सर्वाइव करने के लिए जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, वह सारा का सारा एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है. और जो भी एनर्जी बन रहा है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, वह एनर्जी एडीपी से मिल गया, मिल करके बना दिया एटीपी, और इसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहेगा. जब तक स्टोर रहेगा तब तक, जब तक कि उसका कोई यूज नहीं हुआ. और जैसे ही यूज होगा एटीपी फिर से ब्रेक कर जाएगा. किसमें? एडीपी प्लस एनर्जी. दिस एनर्जी इज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. सो एटीपी इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी. इसी रूप में एनर्जी स्टोर होता है. ठीक है, तो आज हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्लास्टिड. ओके.